welcome back to the channel with the 13th chapter of class 2nd science, that is about the sun and shadows. Okay, so let's start the chapter and learn about it. See, first of all, they have given you about the sun. Sun is a star that we can see during the daytime. Sun क्या है? Sun एक star है जो आप during the daytime sky में देख पाते हैं. एक बहुत बड़ी बॉल है सन, किसकी बनी हुई? फायर की. The sun gives life to all living things on the earth. Sun क्या है? अर्थ पर सभी living things को life provide करते हैं. Sun rises in the east. कहाँ से? East direction से sun rise होता है and west direction में set हो जाता है. The days are bright. Days आपके bright and warm रहते हैं. किसकी वजह से? Sun की light and heat की वजह से. If we talk about night, तो night आपकी dark and cool रहती है because there is no sun. नाइट टाइम पे क्योंकि सन नहीं होता है इसीलिए तब डार्कनेस एंड कूलनेस रहती है. ठीक. नाउ सम बेनिफिट्स. सन के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि राइपन फ्रूट्स. सन की हीट की वजह से जो फ्रूट्स हैं वो राइप हो जाते हैं, पकने लगते हैं. सेकेंडली इवेपोरेट्स वाटर. वाटर को इवेपोरेट करती है सन की हीट. ड्राइज वेट क्लोथ्स. आपके जो वेट क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं. किल्स जर्म्स. सन की हीट जर्म्स को किल कर देती है. And also helps the plant to make food. Plants जो अपना food prepare कर पाते हैं, that is also with the help of sunlight. Okay? चलो. Next we have the topic light and shadow. See students, light is required. Light की requirement होती है सभी objects जो हमारे surroundings में हैं उनको देखने के लिए. And a shadow का फॉर्म होगी when an object blocks the light falling on it. जब एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फॉल होने वाली लाइट को ब्लॉक कर देता है तब वहां पे उस ऑब्जेक्ट की शेडो का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. सी सो व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, जब आप क्या करते हो, आप जब रोड पे वॉक कर रहे हैं आपको अपनी शेडो दिखाई देती है बिकॉज लाइट जो है उस आपकी बॉडी के थ्रू पास नहीं हो पाती. राइट. We can see our shadow whenever we move in the sun or other source of light. जब भी आप क्या sunlight पे या किसी other source of light में move कर रहे हो, like it could be moon, lighted bulb or lanterns, etc. कुछ भी, तब आपको वहाँ पे अपनी shadow देखने को मिलती है. The length of the shadow is different at different times of the day. आपके एक दिन के दौरान अलग अलग टाइम पर आपको अपनी shadow की length different दिखती है. जैसे कि इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे आपकी शेडोज लॉन्ग होती हैं बिकॉज सन जो है स्काई में लो होता है ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम. वेराज एट द नून टाइम पे सन क्योंकि आपके बिल्कुल ओवर द हेड होता है तो शेडो काफी शॉर्टेस्ट बनती है. You could see this is the morning shadow and this is the evening shadow, but this is the shadow which is during the noon time. Okay. A shadow is always formed in the direction opposite to the source of light. एक shadow का formation हमेशा light के source से opposite direction में होता है. If the light is falling on an object from the left side, अगर light एक object पर left side से fall कर रही है तो shadow कहाँ बनेगी? object के right side पे बनेगी. But अगर एक light जो है object पे right side से fall करेगी तो shadow object के left side बनेगी. Alright? चलो. So that's for the chapter. Next we come to exercise portion. First of all, darken the correct option with in the OMR sheet. First of all, it helps plant to make food. Plant food prepare कर पाते हैं किसकी वजह से? Sun की वजह से, sun की light की वजह से. So option B is correct. Secondly, the heat of the sun. Sun की heat क्या करती है? Wets the cloth, kills the germs, does nothing, increase the germs. So this is kills germ. Option B. सन की हीट की वजह से जर्म्स किल हो जाते हैं. If the light is coming from right side, अगर लाइट राइट साइड आती है, इससे आ रही है, तो शेडो कहाँ बनेगी स्टूडेंट? इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ओके. ऑप्शन ए. एज आई टोल्ड यू कि लाइट सोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडो का फॉर्मेशन होता है. द डैश ऑफ द शेडो इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. डे के डिफरेंट टाइम्स पर शेडो आपको डिफरेंट देखने को मिलती है. शेडो की क्या? शेडो की लेंथ. ऑलराइट. ऑप्शन ए. इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? सन कौन सी डायरेक्शन से? ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलो. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है सन गिव्स लाइफ टू ऑल लिविंग थिंग्स. सन क्या है? सन सभी लिविंग थिंग्स को लाइफ प्रोवाइड करता है.
सेकेंडली व्हेन अ बॉडी ब्लॉक्स द लाइट, जब एक बॉडी लाइट को ब्लॉक कर देगी तो वहां पे क्या फॉर्म होगी? शेडो. सो राइट ओवर हियर अ शेडो इज फॉर्म. शेडोज आर डैश इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. शेडोज कैसी होती हैं? शेडोज आर लो इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. शेडोज आर द डैश. शेडोज सबसे ज्यादा क्या आपकी शॉर्ट होती हैं एट द नून टाइम. ओके, सो द स्टेटमेंट वाज द सन लुक स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू अवर अर्थ. सन जो है स्मॉल दिखता है बिकॉज वो हमारे अर्थ के काफी क्लोज है. नो फॉल्स, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, देयरफॉर इट लुक्स सो स्मॉल. नेक्स्ट, द मून हेल्प्स द प्लांट. मून जो है प्लांट को हेल्प करता है टू मेक देयर फूड. नो, सन हेल्प्स द प्लांट टू मेक देयर फूड. एट नाइट, नाइट टाइम पे देयर इज नो सन, सो इट इज कूल एंड डार्क. यस, ट्रू. ओके, इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग पे सन आपका लो होता है इन द स्काई. यस, ट्रू. देन वी कैन सी लाइट ऑफ द स्टार्स. हम स्टार्स की जो लाइट है वो डे टाइम पे देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ सन. नो, फॉल्स. Next, we come to answer the following question. First question we have, what is sun? Sun is a big ball of fire which gives heat and light on the earth's surface. Okay. Next, from which direction then the sun rise? Sun rises in the east direction. कहाँ से? East direction से sun rise करता है. Secondly, write some benefits of sun. Sun के कुछ benefits आपको लिखने हैं. So we have discussed over here. You have to write all of these benefits. See it. You will write all of these benefits, that it ripens the food, evaporates water, dries wet clothes, kills the germs, and helps the plant to make food. All of these benefits you have to write. Okay? Next question we have is, how is shadow form? Shadow form कैसे होती है? When an object blocks the path of light falling on it. जब एक ऑब्जेक्ट उस पर फॉल होने वाली लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है तब शेडो का फॉर्मेशन होता है. लास्ट, इन विच डायरेक्शन इज द शेडो फॉर्म? शेडो किस डायरेक्शन बनती है? शेडो इज फॉर्म इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, in the opposite direction with the source of light. All right, the chapter is completed. That's all for today, and I hope you must have understood it. So now let's meet in the next session very soon. Then take care of yourself, and thanks to everyone.